Hello students, this is second chapter of your book Consumers Equilibrium. So in this chapter we are going to study meaning of utility, types of utilities and two different measurements of utility analysis. Although utility is not measurable, but still some scholars had provided different measurement of utility, cardinal and ordinal. First of all, you should know the meaning of consumer. Who is a consumer? Consumer is one who ultimately consumes goods and services for his own satisfaction. So everyone will be a consumer if they are using goods and services of their own benefit. So as to measure the utility of any commodity, we can go with two different approaches. First, cardinal approach of utility analysis. It was propounded by Professor Alfred Marshall. And second was ordinal approach of utility analysis. That was given by J.R. Hicks. So, what is utility? It refers to want satisfying power of a commodity. And cardinal measurement of utility can be measured by using a imaginary unit, that is utils. हम लोग utils एक imaginary unit है use कर सकते हैं so as to identify the measurement of utility. वैसे तो किसी भी चीज़ की यूजफुलनेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एज पर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर and basically it is relative to the money value of any commodity. So utils is the imaginary unit for measuring that intensity. Utility can be of two types: total utility and marginal utility. First, total utility. It refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of commodity. For example, if we are consuming 3 apples, अगर हम 3 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, when we start consuming first apple, maybe the first apple will give us maximum satisfaction or more satisfaction than the later consumption. So for example, if first apple give us 10 utils of satisfaction, then we start consuming second apple, definitely the second apple will give us less satisfaction compared to the first one, क्योंकि हम पहला एक कंज्यूम कर चुके हैं तो दूसरे के लिए हमारी जो अर्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाती है. तो let us assume it is 8 utils. Now third apple give us 6 utils. So altogether, by consuming all 3 apples, we can get total 10 plus 8 plus 6 utils, which means 24 utils of satisfaction. So 24 will be the total utility of consuming 3 apples together. See, TUN, N means number of unit that we consume. So U1, that means utility of first unit, U2 means utility of second unit, U3 means utility of third unit and so on. जितने भी हम यूनिट यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने 3 एप्पल्स किए थे तो हम शायद 3 पर ही एंड कर देते, बट अगर आप 5, 7 और 20 यूनिट्स यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज हो जाएगा. TUN इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी. यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 ये इंडिकेट कर रहे हैं आपकी इंडिविजुअल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट का एंड थर्ड यूनिट का. एंड एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड. When we represent this graphically, you can see
TU is a bell-shaped diagram. Initially it increases, later on after getting saturated it start declining. We have two axes in this diagram, y and x axis. The vertical axis indicate the value of total utility, vertical axis, and the horizontal axis, that is output, indicates as we increase more and more unit of any commodity, total utility initially increases and after getting saturated it start declining. Now come to second aspect of utility. This is marginal utility. It refers to additional utility derived from the consumption of one more unit of given. So, marginal utility is the additional utility we can get by using only one more unit of any commodity. किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर जो भी आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में एडिशन हो जाए, बस उसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. जैसे अगर हम 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 एप्पल कंज्यूम किया तो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला था 24 यूटिल्स का. बट इफ़ वी कंज्यूम ओनली 2 एप्पल, अगर हम 2 ही एप्पल कंज्यूम करते तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन था वो था 18 यूटिल्स का. तो ये जो थर्ड यूनिट हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम की है, इसे कंज्यूम करने पर हमारे टोटल सेटिस्फेक्शन में एडिशन क्या हुआ. अब यहाँ एडिशन कैसे निकालना है, 24 माइनस 18 करेंगे. तो 24 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर थर्ड कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो विजिबली 6 यूटिल आ रही है. तो 6 is the marginal utility of third level of consumption. When we calculate this MU, we can use formula MUN equal to TUN minus TUN minus 1, यानी कि current level of total utility minus previous level of total utility. But when the consumption increase by more than one at a time, अगर आप चीज़ों को एक से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एक बार में, then you can use formula change in TU upon change in Q, quantity consumed. Okay, when we draw this graphically, when we represent this graphically, this marginal utility, we have two axes y and axis x. On x axis we can write output, and on y axis marginal utility can be represented. Okay, MU is a straight line downward slope curve. MU जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप कर्व होता है. क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जब भी हम कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल बेनिफिट आते हैं वो हमेशा डिक्रीज ही होते हैं. ठीक है, तो इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं. द सेम डायग्राम कैन बी एप्लीकेबल टू आंसर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. Okay, relationship between total utility and marginal utility. अगर आप TU और MU दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दें तो जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो ये 3 ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं. इफ़ वी ड्रॉ total utility curve and marginal utility curve together, we can determine these 3 results, these 3 observations. First, till TU increases, MU decrease but remains positive. जब तक TU इंक्रीज होता रहेगा, राइज करता रहेगा या ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तब तक MU डिक्रीज होगा बट हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा. When TU become highest, अगर TU हाईएस्ट हो जाता है तो MU की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. भाई अगर TU हाईएस्ट हो गया तो 2 लेवल तक लगातार सेम ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 10 और अगले लेवल पर भी 10, तो 10 माइनस 10 क्या हुआ, 0 हो गया. इसका मतलब MU की वैल्यू 0 आ गई. एंड थर्ड पॉइंट इज व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, MU बिकम नेगेटिव. जब TU डिक्लाइन ही होगा, इंक्रीज हो ही नहीं रहा, वो तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे केस में जो MU है वो नेगेटिव भी हो जाएगा, 0 उसके बाद नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility.
ये जो डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी है ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो हमेशा इससे गाइडेड होती है। देखिए जो हमारे सोचने समझने काम करने का तरीका है वो हमेशा इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा या ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की यूटिलिटी हमारे लिए थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, जो चीज़ें बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास एक पेयर ऑफ जीन्स हैं और पेयर ऑफ शू है, सिर्फ एक ही है, तो भाई वो तो ज़्यादा केयर करेगा ना इन चीज़ों की। और किसी के पास ये n नंबर ऑफ एप्रिल्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है, टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, तो अगर कुछ ख़राब भी हो जाए, उस पर कोई कलर लग जाए या कुछ हो जाए, तो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, डाउट्स नहीं होते, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इतनी सारी तो हैं, तो क्या टेंशन लेना। इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम हो गई। ठीक है, तो बस ये हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, ये सभी के साथ अप्लाई होता है और हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे लिए थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो लॉ क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ TMU, डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी, क्या स्टेट करता है? द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम्स more and more of any commodity, the utility derived by every additional unit will goes on decline या decrease। हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। And that is also based on some assumption like utility is cardinally measured। यूटिलिटी को आप मेज़र कर रहे हैं कार्डिनल मैनर में, विच मीन्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कंपेयर करते हैं मनी वैल्यू से। रीजनेबल क्वांटिटी, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग गुड्स, वी आर कंज्यूमिंग दोज गुड्स इन अ रीजनेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, वी आर नॉट हैविंग टी बाय ए स्पून, वी ऑलवेज drink tea by a cup, which means a cup of tea is a reasonable quantity that we should consume. Continuous consumption, when we are consuming goods, we should consume those goods in a successive manner। आप बीच में 3 या 4 घंटे का गैप लेंगे तो गैप में तो दोबारा से अर्ज रिवाइव हो जाएगी। जैसे हम खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर लंच का टाइम हो गया और रात में डिनर का टाइम हो गया, उसके बीच में ये 3-4 घंटे का गैप आ जाता है। ये 3-4 आवर्स सफिशेंट होते हैं फूड के लिए एक अर्ज क्रिएट करने में। तो अगर आप कंटिन्यूस या सक्सेसिव मैनर में कंज्यूम कर रहे होते तो शायद आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते। सो कंजम्पशन मस्ट बी इन ए सक्सेसिव मैनर। नेक्स्ट इज नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज जो सेम क्वालिटी ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे वही एक मोनोटनिक प्रेफरेंस क्रिएट करेगी या मोनोटोनी क्रिएट करेगी। A rational consumer, a consumer must be rational। So who is a rational consumer? Rational consumer is one who always try to maximize his benefit by any means। आप किसी भी तरीके से अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, यही आपकी रैशनैलिटी है। ठीक है, जो रैशनल कंज्यूमर होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सभी कंज्यूमर ऐसे होने चाहिए जो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहें। और लास्ट वन इज़ फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। जो इनकम एंड प्राइस होगा कमोडिटी का वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस कम होता है तो हम उसे ज़्यादा भी परचेज़ कर सकते हैं, कमोडिटी को ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमेशा प्राइस और इनकम में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, दे बोथ मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ वी हैव अ टेबल which shows law of diminishing marginal utility, that is same as we have already studied earlier। इसमें 3 कॉलम हो गए आपके, यूनिट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यू कैन सी द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग with every successive unit। it shows the law actually operates on that commodity। तो पहले हमें फर्स्ट कमोडिटी के कंजम्पशन पे मिले 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, सेकंड में आपको 16 और थर्ड में आपको 10 यूटिल्स ही बेनिफिट मिल रहा है। फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि 4 और 0 भी हो जाएगा। 0 दैट मीन्स अब कोई एडिशन नहीं है,
आपने जब 4 यूनिट से 5 यूनिट कंज्यूम की तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ. दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेरिटी, पॉइंट ऑफ सेसिएशन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी. यहाँ टोटल यूटिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट होगी. आफ्टर दैट वी शुड गो विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. यहाँ से हमारा जो फर्स्ट अप्रोच है स्टार्ट होती है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं. यहाँ दो वर्ड है, कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को वैसे हम लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में जहाँ दो इकोनॉमिक वेरिएबल बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं. आपने वेइंग स्केल देखा हो, उसके दोनों साइड पे कुछ सामान रखते हैं, जैसे कि एक साइड वेट रख दिया और एक साइड किसी कमोडिटी को रखा, और आप वेट करते हो, जहाँ दोनों बैलेंस हो जाते हैं बस वो एक वैलिड वेट होता है किसी कमोडिटी का. तो जहाँ दो वेरिएबल इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट होता है. बेसिक सेंस इसका है स्टेट ऑफ रेस्ट, विच मीन्स देर इज़ नो टेंडेंसी ऑफ चेंज इन दैट पोजिशन. उस पोजीशन में अब कोई बदलाव ना आए, कोई चेंजेस ना आए, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम लेवल आ गया. बट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता होगा? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का सेंस यहाँ पर ये है कि कंज्यूमर ने अपने बेनिफिट को और सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया, विच मीन्स इट इज़ ए हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर ए कंज्यूमर दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. So it is a state of rest or the position of no change when a consumer having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. जो पैसे वो खर्च कर रहा है वो उतना ही करता रहेगा, जिन कमोडिटीज़ के ऊपर कर रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, बिकॉज वो जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है या लेवल ऑफ कंजम्पशन है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. इससे ज़्यादा कंज्यूम करने पर वेरिएशन आ जाएगा और इससे कम कंज्यूम करने पे भी वेरिएशन आएगा. सो दिस इज़ ए यूनिक और आइडेंटिकल बंडल ऑफ कमोडिटी at which consumer is actually getting maximum satisfaction. This approach is a cardinal approach in which utility is measurable in terms of number. Now, we can have two cases here, two aspect of this consumer equivalent by cardinal approach. First, when a consumer is using only one commodity at a time. Other one is consumer is consuming two goods simultaneously. ठीक है, या तो कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है या फिर कंज्यूमर दो गुड्स एक साथ कंज्यूम कर रहा है. नाउ इन केस ऑफ वन कमोडिटी अप्रोच या वन कमोडिटी केस, ए कंज्यूमर परचेजिंग ए सिंगल कमोडिटी will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which give him maximum satisfaction. अब ये कैसे पता चलेगा कि maximum satisfaction आ गया या नहीं आया? भाई ये पता चलेगा जब यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की, वो उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर फील हो. मतलब कहने का ये है कि अगर आप पे कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी कमोडिटी के लिए, तो वो आपके लिए वर्थफुल हो. कई बार ऐसा भी होता है कि हम पे कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि इतनी की वर्थ नहीं है, मतलब कमोडिटी की वैल्यू कम है बट वी आर पेइंग मोर. ठीक है, वो एक डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है. कई बार ऐसा भी लगता है कि हम पे कम कर रहे हैं पर कमोडिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके लिए वर्थफुल है, तो आप शायद ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते थे. तो ये भी एक काइंड ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है. अब इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. ठीक है, दे मस्ट बी टू कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, विच शुड बी सेटिस्फाइड टू गेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज दी MU ऑफ दैट कमोडिटी. यहाँ पर हम कमोडिटी को एक्स मान लेते हैं, चलिए. ठीक है, दी MU ऑफ दैट कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. क्या मतलब हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाए? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी के बराबर हो जाए. उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर जब हो जाएगी ना MU, तो बस वही लेवल ऑफ आउटपुट क्या कहलाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला आउटपुट होगा. और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो MU होगा एज पर लॉ ऑफ DMU, जो MU होगा किसी भी कमोडिटी के लिए, दैट विल ऑलवेज डिक्लाइन. वो डिक्रीज ही होगा बिकॉज DMU ऑपरेट्स इन दैट. नाउ
in this schedule we can say MU is continuously declining in third column. Please look at this. In third column, MU is continuously declining. It is 20, 16, 10, 4, 0 and minus 6. Whereas price is also given in second column, 10 rupees for each commodity. So we can see at which level the price of the commodity and the marginal utility of that commodity become equal. This is third level of output. When we consume 3 unit of that commodity, we'll feel that the price of that commodity become equal to the marginal utility of that commodity. So from a consumer's side, we can feel this is the maximum benefit I can get by spending that 10 rupee. If I continuously consuming successive unit of that commodity, the MU of that commodity will decline, whereas price will remain same. अब आप अगले लेवल में देख लीजिए, जब मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो MU कितना रह गया, यानी बेनिफिट कितना मिला मुझे 4 यूटिल्स का, जबकि प्राइस कितना है यहाँ पर 10, तो प्राइस ज़्यादा हो गया और यूटिल्स कम. इसका मतलब जो कमोडिटी की वर्थ है हम उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो कंज्यूमर तो नहीं चाहेगा ना कि वो ज़्यादा पे करे. विच मीन्स कंज्यूमर हमेशा उस पॉइंट को फोकस करेगा जहाँ पर प्राइस और MU दोनों बराबर हो जाएं. तो इसके ठीक सामने देखिए क्या लिखा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर इज MUX इक्वल टू PX. और उससे ऊपर वाले केस में जो फर्स्ट 2 लेवल हैं 1 and 2, इन 2 लेवल्स पे MUX वाज मोर देन PX और लेटर ऑन MUX बिकम लेस देन PX. अच्छा, ग्राफिकली कैसे शो करेंगे देखिए ध्यान से. MU डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, MU डिक्लाइन हो रहा है, MU डिक्लाइंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन, बट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी रिमेन्स सेम. That is why the price line is a parallel line to x-axis. So this declining MU, MU curve intercept price line at point E. This point E is called consumer's equilibrium. So it indicate a consumer must consume only 3 unit of that commodity so that he get maximum satisfaction of that commodity. Next, 2 commodity case, which means a consumer is consuming 2 goods simultaneously. वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक साथ अपनी इनकम के हिसाब से, ठीक है, पैसे भी खर्च करेगा इन 2 गुड्स के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखिए यहाँ पर 2 कमोडिटी केस को हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, a consumer get maximum satisfaction when a ratio of MU of 2 commodities and their respective price are equal and MU fall as consumption increases. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप इक्वेशन देखेंगे तो समझेंगे. It means there are 2 necessary conditions to attain consumers equilibrium in case of 2 commodities. See, here also we have to attain at least 2 basic necessary conditions. First is MUX upon PX. अब देखें जो पीछे लिखा था वही यहाँ पर इक्वेशन में है, ठीक है, जो आपने अभी सुना वो इक्वेशन में लिख दिया बस और कुछ नहीं. MUX upon PX which means the ratio of marginal utility and price of a commodity must be equal to the ratio of marginal utility and price of other commodity, यानी MUI upon PY, and which also must be equal to MUM. अब यहाँ MUM का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. बेटा मनी की यूटिलिटी कभी डिक्लाइन नहीं होती, ठीक है. हम लोग गुड्स से सर्विसेज से थोड़ा सा लेस सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, जितना ज़्यादा होंगी उतना ही हमें कम सेटिस्फाई करेगा. बट मनी एक ऐसी कमोडिटी है या मनी एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा मिले उतना ही हमें कम लगता है. विच मीन्स कि अगर मनी आप रिसीव करते भी जाओगे ना तो भी आप मनी से 100% सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है, जितना होगा उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए होगा. सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल नॉट गोइंग टू फॉल. सेकेंड कंडीशन इज MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज. सी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होगी ही, दोनों गुड्स की डिक्लाइन होगी, ठीक है. MU ऑफ बोथ द गुड्स डिक्लाइन, और दोनों एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मैच करेंगे, मीट करेंगे, जहाँ पर MUM की वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. तो ये तीनों चीज़ें हमेशा इक्वल होनी चाहिए.
MUX upon PX must be equal to MUY upon PY must be equal to MUM. ओके, दैट वाज कार्डिनल अप्रोच जो आपने आज समझ लिया. अभी बहुत एफर्ट करना है, एक बार खुद से रीड करना है इसे. नाउ व्हाट इज़ इन होमवर्क, डू रीड चैप्टर अप टू द कार्डिनल अप्रोच ओनली. डू NCERT क्वेश्चंस इन योर होमवर्क कॉपी. स्टार्ट डूइंग दैट होमवर्क ऑल्सो. मेक शॉर्ट नोट्स इन नोट कॉपी. अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए, जैसे कि यही नोट्स जो हैं आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे. और इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सभी चीज़ों के डायग्राम की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. ओके.